students, this is class 12th and subject is political science. In this today's videos, we are going to start the book number 2, that is Politics in India since Independence. Students, you must remember this is your part B, and in this book we have started the chapter number 7. Few topics we already have covered under this chapter number 7. Let's discuss the next topic of this chapter. Yes students, in chapter number 7, that is the rise of popular movements, we already have covered few topics, but before mentioning the topic I would again like to remind you, according to the updated syllabus, now the chapter name is Social and New Social Movements in India. Okay, जो पहले चैप्टर का नेम था राइज ऑफ पॉपुलर मूवमेंट्स, अब इसका न्यू नेम नए अपडेटेड सिलेबस में सेम चैप्टर का नेम है सोशल एंड न्यू सोशल मूवमेंट्स इन इंडिया। तो स्टूडेंट, इसमें हमने जो मेजर टॉपिक्स करने हैं वो है हमारे फार्मर्स मूवमेंट है, वर्कर्स मूवमेंट है, विमेंस मूवमेंट एंड इकोलॉजिकल मूवमेंट्स। ओके, तो ऑलरेडी हमने जो चैप्टर में इसमें टॉपिक कवर कर लिए हमारी पुरानी प्रीवियस वीडियोस में, वो है हमारे विमेंस मूवमेंट, ओके, जिसको हम एंटी एरेक मूवमेंट भी बोलते हैं, और हमारी फार्मर्स मूवमेंट दैट इज भारतीय किसान यूनियन BKU। ये ऑलरेडी हमने पिछले दोनों वीडियोस में कंप्लीट कर रहे हैं। और आज का हमारा जो टॉपिक है इस वीडियो में दैट इज द इकोलॉजिकल मूवमेंट। इकोलॉजिकल मूवमेंट्स को स्टूडेंट्स हम लोग क्या बोलते हैं, इसको एनवायरनमेंट से रिलेटेड मूवमेंट्स बोलते हैं, और इस चैप्टर में इस मूवमेंट का नेम है चिपकू मूवमेंट। सो लेट्स स्टार्ट द चिपकू मूवमेंट। Before starting the chapter, I would like to show a picture. See the picture very carefully. Yes, students, what do you see here in the picture? In this picture, you are watching the villager, the women of the village. They are going to embrace the trees. What is this? What are they doing? Do you think they are doing some activity or they are playing any game? No, students, not at all. Actually, this is the image that depicts a very unusual form of collective action in which men and women from the village, that is in Uttarakhand, in early 1973. Actually, these villagers, these women, they are protesting against the practice of commercial logging, and that's why they are avoiding, they are protesting to cut the trees, and they are following a very novel method. They are going to hug the trees. Okay, why they are hugging the trees? They are hugging the trees to prevent them from being cut down. So this protest marked the beginning of the world famous environmental movement in our country, that is known as Chipko movement. So students, today's topic is Chipko movement. This is an environmental or ecological movement. Let's have the detail of this movement. So Chipko movement means, first of all, let's see what is the meaning of the Chipko movement, where it was started, and why the name was given to दिस मोमेंट एज अ चिपको मोमेंट। ओके स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने अभी पिक्चर में देखा कि जितने भी विलेजर्स हैं, सी हियर इन द कार्टून, ये विलेजर उस ट्री को हग कर रहे हैं ताकि उसको काटने से बचाया जा सके। अब देखते हैं व्हाई द पीपल वर गोइंग टू कट दैट एंड हु वर द पीपल दोज वर गोइंग टू कट द ट्रीज। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। ये मोमेंट कब की है? ये विलेज उत्तराखंड की है। उत्तराखंड के जो विलेजर्स हैं, तो वहाँ पे नियर अबाउट 2-3 विलेजेस में ये मूवमेंट शुरू हुई थी। एक्चुअली क्या हुआ था, व्हेन द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स refused the permission to the villager to fell the ash trees for making agricultural tool। एक्चुअली जो उत्तराखंड के विलेजर्स थे उन्होंने गवर्नमेंट से, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से परमिशन मांगी थी कि कुछ एक एरिया के ट्रीज को कट करने दो उनको। एक्चुअली वहाँ के लोग जो प्रैक्टिस करते हैं वो स्लैश एंड बर्न की एग्रीकल्चर, मतलब वहाँ पे ट्रीज को जला देते हैं, फिर उनको जो उनके लॉग्स हैं, जो भी उनके लॉग्स हैं, उनको यूज़ करते हैं अपने अलग अलग फार्मिंग टूल्स बनाने के लिए। तो जो वो फार्म क्लियर करते हैं, जो उसकी एशेस बच जाती हैं, उनको जला के उसको वापस उसमें फ्लो करते हैं, तो वो मेथड यूज़ करते हैं स्लैश एंड बर्न का। ओके, तो वहाँ के विलेजर ने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से परमिशन मांगी कि कुछ एक ट्रीज उनको गिराने दो, जो उनके एग्रीकल्चरल टूल्स हैं उनके लिए उनको वुड चाहिए, उसके लिए परमिशन चाहिए थी ट्रीज को काटने की। लेकिन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने ये मना कर दिया। ओके, द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उनको मना कर दिया, बट दैट डिपार्टमेंट दे अलॉटेड द सेम पैच ऑफ लैंड टू द
स्पोर्ट्स मैन्युफैक्चरर फॉर द कमर्शियल यूज़। अब एक बाहर से कंपनी आई जिसने स्पोर्ट्स की चीज़ें बनानी थी, जैसे क्रिकेट के बैट्स हैं और इक्विपमेंट्स हैं, तो उन्होंने स्पोर्ट्स की जो मैन्युफैक्चर करनी थी, चीज़ें बनानी थी, उसके लिए सेम पैच ऑफ लैंड था, उस कंपनी को अलॉट कर दिया। अब विलेजर क्या थे, दे बिकेम वेरी एनॉयड, बहुत गुस्सा आया उनको कि उनके एरिया के जो फॉरेस्ट हैं, जो उनकी प्रॉपर्टी है, और गवर्नमेंट उनको अलाउ नहीं कर रही लेकिन फॉरेन कंपनी को अलाउ कर रही है। तो ये बहुत बड़ा एक मुद्दा बन गया। लार्जर इश्यूज ऑफ इकोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द रीजन वर दिस। अब लोगों ने मुद्दा क्यों उठाया, एक तो इकोलॉजिकल कि वहाँ के उनके जो वन हैं, जो जंगल है वो काट रहे हैं, दूसरा उनकी इकोनॉमी के ऊपर दूसरी फॉरेन की जो कंपनीज है वो उनके ऊपर अपना कब्जा जमा रहे हैं। सो विलेजर डिमांडेड दैट, इसमें उन्होंने डिमांड क्या रखी, सी हियर, नो फॉरेस्ट एक्सप्लॉयटिंग कॉन्ट्रैक्ट शुड बी गिवन टू द आउटसाइड। पहला तो डिमांड ये थी कि कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बाहर के लोगों को नहीं देना, ओके, जो उनके फॉरेस्ट रिसोर्सेज को एक्सप्लॉयट करता हो। दूसरा, जो लोकल कम्युनिटीज़ है, दे शुड हैव द इफेक्टिव कंट्रोल ओवर द नेचुरल रिसोर्सेज लाइक लैंड, वाटर एंड फॉरेस्ट। ये नेचुरल रिसोर्सेज की बात करते हैं कि लैंड वहाँ की, वाटर और फॉरेस्ट रिसोर्सेज पे जो वहाँ पे लोकल कम्युनिटीज़ है, जो वहाँ पे रह रहे हैं लोकल कम्युनिटीज़, ये उनका कंट्रोल होना चाहिए, उनके पास इसके राइट्स होने चाहिए। ओके, सो ये दो डिमांड थी, फॉरेन के जो कॉन्ट्रैक्टर हैं उनको अवॉइड करना, अपने रिसोर्सेज उनको नहीं देने, और दूसरी बात जो लोकल रिसोर्सेज है, नेचुरल रिसोर्सेज लाइक लैंड, वाटर एंड फॉरेस्ट, उनके ऊपर वहाँ की लोकल कम्युनिटी का ही राइट होना चाहिए। ओके, अब दे वांटेड द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड लो कॉस्ट मटेरियल्स टू स्मॉल इंडस्ट्रीज एंड इंश्योर द डेवलपमेंट। अब वो क्या चाहते थे, गवर्नमेंट क्या करे, गवर्नमेंट से क्या तीसरी डिमांड थी उनकी कि जो बहुत थोड़ी कीमत पे छोटा मटेरियल है, छोटी इंडस्ट्री को चलाने के लिए, वो उनको प्रोवाइड किया जाए कम कीमतों पे, ताकि वहाँ पे उस एरिया की डेवलपमेंट को भी इंश्योर किया जा सके और उसको पक्का किया जा सके। सो दीज आर द पिक्चर्स ऑफ चिपकू मूवमेंट that was started in Uttarakhand Chamoli village. See here, these are the picture of a चिपकू मूवमेंट एंड पीपल स्टार्ट टू हग द ट्रीज। वो ट्रीज के साथ चिपक जाते थे। जब फॉरेन कंट्रीज वाले उनको काटने आए तो दे अवॉइडेड एंड प्रोटेस्टेड। कैसे प्रोटेस्ट किया, बहुत ही नोवल मेथड से, बहुत ही पीसफुल मेथड से, और ये बिल्कुल न्यू मेथड था। पूरे वर्ल्ड में ये पहली इकोलॉजिकल मूवमेंट थी, इन्वायरमेंटल मूवमेंट थी। इन दिस चिपकू मूवमेंट पीपल स्टार्टेड द इश्यूज ऑफ इकोलॉजिकल बैलेंस, कि यहाँ पे इकोलॉजिकल बैलेंस होना चाहिए, नेचर को डिस्टर्ब किए बिना लोगों की डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट उनको लो कॉस्ट पे कुछ ना कुछ उनकी स्मॉल इंडस्ट्री के लिए रिसोर्सेज प्रोवाइड करे। ओके, तो इस मूवमेंट ने बहुत अच्छा इकोनॉमिक इश्यूज था जो उसको भी प्रमोट किया। कौन सा इकोनॉमिक इशू था, इट प्रमोटेड द इकोनॉमिक इशू ऑफ लैंडलेस फॉरेस्ट वर्कर, वो फॉरेस्ट वर्कर जिनके पास अपनी खुद की लैंड नहीं है उनके लिए, एंड आस्क द ग्रंटी ऑफ मिनिमम वेजेस। जो फॉरेस्ट वर्कर्स हैं वहाँ पे काम कर रहे हैं, तो लोगों ने मुद्दा उठाया, डिमांड की कि एटलीस्ट उनको भी मिनिमम वेजेस की अश्योरेंस दी जाए, गारंटी दी जाए। ओके, और इस मूवमेंट की सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है, सबसे स्पेशल फीचर क्या है, लेट्स सी। The women's active participation in the Chipko agitation was very novel aspect of the movement. एक्चुअली ये मोमेंट था जिसमें विमेन ने पार्टिसिपेट किया, एक्टिव पार्टिसिपेट किया, मतलब खुद वहाँ पे आके उस आंदोलन में भाग लिया। ओके, देन इस एजिटेशन, एजिटेशन मीन्स मूवमेंट, आंदोलन, इस मूवमेंट को बहुत ही नोवल वे से, बड़े शांतमयी डिसिप्लिन्ड वे से इसको किया गया। कोई इसमें ब्लड शेड नहीं था, कोई वायलेंस नहीं थी। जितने भी फॉरेस्ट कॉन्ट्रैक्टर थे, अब जिन्होंने ये कॉन्ट्रैक्ट लेना था, जिनके हाथ से कॉन्ट्रैक्ट जा रहा था क्योंकि लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, अब उन्होंने एक ट्रिक यूज़ किया। क्या ट्रिक यूज़ किया, द फॉरेस्ट कॉन्ट्रैक्टर्स ऑफ द रीजन यूजुअली डबल्ड अप द सप्लाईज ऑफ द एल्कोहल टू मैन। अब वहाँ के लोगों को जो एल्कोहल, वाइन की सप्लाई थी वो डबल कर दी पहले से, मीन्स एक तरह से ब्राइब कर रहे थे, उनको रिश्वत दे रहे थे। देन विमेन हेल्ड सस्टेन्ड एजिटेशन अगेंस्ट द हैबिट ऑफ एल्कोहलिज्म and broadened the agenda of the movement to cover the social issues। अब इस मूवमेंट की रूपरेखा बदल गई, इसका जो फेस अब चेंज हो गया, क्योंकि पहले जो इकोलॉजिकल मूवमेंट था, फॉरेस्ट की प्रोटेक्शन के लिए था, नेचुरल रिसोर्सेज को उनकी एक्सप्लॉयटेशन रोकने का मुद्दा था, लेकिन अब क्या हुआ, विमेन ने इस
जो एजिटेशन था इसको एक दूसरा नया मोड़ दे दिया। क्या? अब ये उन्होंने आवाज़ उठाई कि जो हैबिट ऑफ एल्कोहलिज्म है इसको बंद करना है, इसके अगेंस्ट उन्होंने बात की। ये भी एक बहुत बड़ा सोशल इश्यू बनाकर सामने प्रेजेंट किया गया। तो ये थोड़ा एक इकोलॉजिकल मूवमेंट से चेंज हो गया, शिफ्ट हो गया टू सोशल इश्यू। द मूवमेंट अचीव्ड अ विक्ट्री। अब इस मूवमेंट को सफलता भी मिली। कैसे मिली? व्हेन द गवर्नमेंट issued a ban on felling of trees in Himalayan region for 15 years. अब गवर्नमेंट ने बिल पास कर दिया, गवर्नमेंट ने कानून पास कर दिया, कानून बना दिया कि 15 साल तक हिमालय के एरिया में ट्रीज काटना मना है। ओके, अनटिल द ग्रीन कवर वाज फुली रिस्टोर। जितनी देर तक वो जो उनका ग्रीन एरिया उसको पहले की तरह उसको रिस्टोर नहीं कर लेते, उतनी देर तक 15 ईयर्स तक हिमालय में कटिंग क्या होगी? ट्रीज की कटिंग बैन होगी। बट मोर देन दैट, इससे भी ज़्यादा बड़ी बात क्या थी? द चिपको मूवमेंट विच स्टार्टेड ओवर अ सिंगल इशू, जो सिर्फ एक मुद्दे से इकोलॉजिकल इशू से शुरू हुई थी, नाउ बिकेम अ सिंबल ऑफ मेनी सच पॉपुलर मूवमेंट्स emerging in the different parts of the country during 1970s and later. अब इसने नया मोड़ ले लिया, नए सोशल इश्यूज और नए एनवायरमेंटल इश्यूज, नए नए मुद्दे लेके कंट्री के डिफरेंट पार्ट्स में भी आंदोलन शुरू हो गए। टाइम पीरियड क्या था? 1970s ऑनवर्ड। 70s के बाद नए नए जो थे आंदोलन कहीं ना कहीं किसी न किसी कंट्री के हमारे पार्ट्स में, किसी न किसी स्टेट में किसी न किसी टॉपिक को लेके शुरू होते गए। तो स्टूडेंट्स, जैसे हमने पिछले टॉपिक्स में, पिछले वीडियोस में पढ़ा था, भारतीय किसान यूनियन उनकी एक मूवमेंट हुई, उसके बाद हमने स्टूडेंट्स की यूनियन, उनकी स्टूडेंट्स की एजिटेशंस, या फिर विमेन की जो अल्कोहल के अगेंस्ट एजिटेशन थी आंध्र प्रदेश में, उसके बारे में पढ़ा। और इस टॉपिक में हमने आज कवर किया टॉपिक चिपको मूवमेंट का। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स हैव द समरी ऑफ द टॉपिक। आई एम गोइंग टू समराइज द टॉपिक। अभी तक हमने जो पढ़ा मैं उसकी एक समरी डिटेल में बता देती हूँ, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन होने वाला है। Okay students, so let's have the summary of the topic. The Chipko movement actually it started in the 2-3 villages of Uttarakhand. Okay, this Chipko movement was actually having the active participation of the women, so it was very important movement at that time of 1970s. The villagers protested against the practices of logging to be permitted by the government to the foreign companies. So villagers used a very novel tactic, novel method to hug the trees to protect them from being cut down. Okay, and let's see the impact of the movement. What were the result of the movement? It soon spread across many parts of Uttarakhand and larger issues of ecological and economic exploitation were raised. Government issued a ban on felling of trees in Himalayan region for 15 years until green cover was fully restored. Then active participation of women, that was the very novel aspect of the movement. This movement was started with a single issue but became a symbol of many such popular movements that emerged in different parts of the country during the 1970s. So student, ये था हमारा चिपको movement. I hope you must have understood the chapter, and I suggest you to watch the video again to have the better understanding, or if you want to clear your doubts, listen the video again. Okay students, and I suggest you to watch all parts of the chapter. All topics are given in the different videos, so stay connected with the next topic. नया टॉपिक लेके हम जल्दी ही आपको वीडियो सेंड करेंगे, so stay connected.